is how there are certain political parties who are outrightly rejecting it. We talk about them as well, but there are some other parties who are still unclear whether to support or to reject. Now, as far as when it comes to the first approval that is now coming in from the Union Cabinet of One Nation, One Poll, what needs to be amended first in the Constitution, that is something that we'll highlight here. What needs to be amended first? When it comes to Article 83, which is related to the duration of the Houses of Parliament. Article 85 that talks about the dissolution of the House and the people that they represent by the President. We also talk about Article 172. This is the duration of the state legislators. That needs to be amended. Article 174 also that talks about the dissolution of the state legislators. Article 356 that we talk about is the imposition of President's rules in the state. And even when it comes to the most important one, this is the Representation of the People's Act. Section 14 and 15 will be the one that needs amendment as far as we talk about when it comes to the cabinet clearance that has already been given. But this is how when we talk about the opposition which has been slamming the Modi Sarkar, remember this is the vision that the Prime Minister has often talked about of conducting simultaneous elections, saves time. However, the opposition says it destroys the federal structure. Modi government backing saying that ensures policy continuity. However, the opposition comes up to say that it compromises when it comes to democratic values. The Modi government says that the cops are only on police duty once when the elections are taking simultaneously. The opposition says that even they couldn't hold 4 states polls together. However, the Modi government has been backing saying that there will be no disruption in the law and order. Opposition has been saying that this is an aim to end regional parties and their politics and their representation with the people is concerned. Let's in the meantime listen in to more reactions coming in. देखो, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का, पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूँगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पे? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी के साथ केंद्र की सरकार पार्लियामेंट और सारे चुनावों को भंग करा करके एक साथ चुनाव करा दे। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार के प्रचार कर रही है, जमीन स्तर के ऊपर वो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद जब ये बिल आएगा शीतकालीन सत्र में, तब उस पर चर्चा होगी, बहस होगी,
32 से ज्यादा पार्टियों का इसमें मत लिया जाएगा, कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है। जब ये सब चीजों को भी समय है तो आनन फानन में ये बीजेपी की केंद्र सरकार क्या मैसेज देना चाहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करके बहुत बड़ा तीर मारना चाहते हैं। अरे आपको तो इस समय 100 दिन हो गए, जिस प्रकार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इन सब चीजों पर आपका ध्यान नहीं है। खाली लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, जुमलेबाजी कहूंगा इसे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में हमारा टॉप लीडरशिप ये देख रहा है, कंसीडर कर रहा है। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन टॉप लीडरशिप देंगे। लेकिन हमारा कहना है ये जो हमारा देश में मुमकिन नहीं है, इसके बारे में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा लीडर ममता बनर्जी, शी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी एक्सप्रेसिंग हर व्यूज विथ फुल एनालिसिस। हमारा देश का जो सिचुएशन है इसमें इस वन नेशन वन इलेक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट सुटेबल फॉर अस। ऑल गिमिक्स, वो रिग करना चाहते हैं इलेक्शन। डिलिमिटेशन से जब नहीं होता तो वन नेशन वन इलेक्शन का बोलते हैं। बीजेपी से हजम नहीं हो पा रहा है कि उनके जो जमीन, उनके जो पैर तले जमीन है वो खिसक रही है, तो हर एक चीज में उनको प्री रिगिंग करनी है। अब डिलिमिटेशन भी प्री रिगिंग था, वन नेशन वन इलेक्शन इज ऑल्सो वे टू रिग द इलेक्शन। Well, that is how the opposition has been reacting. Let's talk about the BJP and its allies there, which have been hailing the cabinet decision, saying that simultaneous elections were needed for the development of the country to maintain law and order. Also, according to reports, the responsibility to hold talks with the opposition that has been bestowed on 3 union ministers, that is Rajnath Singh, Arjun Ram Meghwal and Kiren Rijiju. Under the chairmanship of Honorable Prime Minister, approved to bring the bill in the parliament, place the bill. One election, one nation. That is in the preliminary stage with discussion with already Honorable former President of India's under leadership. They have taken several advices for the successful of one nation, one election issue. Actually, even with the getting the confidence of the voters, what best way we have to go for the one nation one election issue. वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। बार बार जो थोपे जा रहे थे चुनाव, उससे देश को निजात मिल पाएगा और राजकीय कोष पर जो ये भार था वो काफी हद तक कम हो सकेगा। योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नीतियां बदस्तूर जारी रहेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में आ सकें। इसलिए ये एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे और देश को इसका व्यापक लाभ आने वाले वर्षों में मिल सके। We have Mohit joining in at this point.